Good evening, student, and I welcome you on the filler form app. Student, साथियों, यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करने के सपने को लेकर हम चल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी आप लोगों की जर्नी है और एक शानदार जर्नी के साथ और एक ऐसे विषय के साथ में जो न केवल इंटरेस्टिंग है बल्कि जॉब ओरिएंटेड करियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है स्टूडेंट। So English literature is one of the most, you can say, job oriented, career oriented subject, as well as we learn many more things from English literature. Literature is life. So student, I welcome you again on the filler form app. Here I am Dinesh Kamli Brahmane, and as you know student, we are our filler farm app is on the different platform of social media like Instagram, WhatsApp and Telegram. You can join us. And student, you we provide you the complete course for first paper. And if you purchase our course 6 months course for first paper, you have to pay only 1499 rupees. Student, it is very less price. And if you purchase paper 2 any subject and a paper 2 any subject, if you purchase this course, then you have to pay only 2499 rupees. And paper 1 paper 2 both, if you purchase for 6 months, then you have to pay only 2499 rupees. And paper 1 paper 2 for 12 months, just pay 4499 rupees, and you will get many more things from this course. Student, we will provide you notes, previous year question paper with answer, and 100 plus mock test. Filler form is totally dedicated for the UGC NET JRF in India. Student, if you want to get 10% off at discount, then you can use my code DISENG10. You can use this code and you can get benefit. And student, here I am once again Dinesh Kamli Brahmane. I am the filler form faculty of English. I have already qualified UGC NET in English. Right, I'm doing PhD, as well as I have done MA in sociology, also awarded by the government of India as well as MP state. So good evening everyone, good evening. And student, so without getting delay, before moving ahead, I would like to tell you student, किसी ने कहा है यदि आप आज भी वही करते हैं जो अब तक करते आए हैं, तो आपको आगे भी वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। सो स्टूडेंट, हमको कुछ नया करना है, कुछ नया पाना है, तो हमें, या हम चाहते हैं कि हमको वो चाहिए जो अब तक नहीं मिला है, तो हमको वो करना पड़ेगा जो जो हमने अब तक नहीं किया है। सो इसी के साथ में कुछ नया करने का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, जो यूजीसी नेट जेआरएफ की इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है, उसमें जो पहली फर्स्ट 4 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट ड्रामा, सेकंड यूनिट पोएट्री, थर्ड यूनिट फिक्शन एंड फोर्थ यूनिट जो है नॉन फिक्शनल प्रोज, वो ये सारी यूनिट्स को हम चर्चा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। जो कंबाइंड यूनिट, हम जो 4 यूनिट्स है उसमें हम ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, यानी ब्रिटिश लिटरेचर में जो भी 4 यूनिट्स हैं वो सब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 4 यूनिट्स हमारी रेगुलर चल रही है। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड लेट्स बिगिन टुडेस क्लास विद थॉमस लॉज। ठीक है, आज की क्लास हम थॉमस लॉज से शुरू करते हैं। गुड इवनिंग। एज सुन एज यू enter in the class, student, please put the message present p p आप मैसेज के रूप में आप यहाँ पर ये करें, है ना, ताकि हमें पता चल जाए किसने ज्वाइन किया है। प्रेजेंट, है ना, p आप छोड़ दीजिए, यस p, है ना, you can send the message p in the chat box. ठीक है, so once again I welcome you and let's move ahead. Thomas Lodge, let us discuss about Thomas Lodge. Let me remind you student, मैं आपको याद दिलाऊं, हम लोग जो है यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गॉट इट स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में पता होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स, तो उसमें जो है थॉमस लॉज एक बड़ा नाम है। ठीक है ना, हम उसकी बात करेंगे। गॉट इट, ठीक है, चलिए थॉमस लॉज के बारे में देखिए। यहां पर थॉमस लॉज की अगर हम बात करें,
देखिए, he was born in 1558 and died in 1625, है ना, रिमेंबर, born in 1558 और died in 1625. सो यहाँ पर देखिए इनके बारे में थोड़ा सा हम जाने तो ही वाज सन ऑफ सर थॉमस लॉर्ड, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। देखिए, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, उनके पिताश्री बहुत अच्छे पद पर है, मेयर है लंदन के, तो उनके बेटे हैं ये। और ही वाज एजुकेटेड एट मर्चेंट टेलर्स स्कूल इन एंड ट्रिनिटी कॉलेज। स्टूडेंट रिमेंबर, जैसा कि आप जानते हैं यूनिवर्सिटी विट्स, कुछ जो राइटर्स है, प्रोमिनेंट राइटर्स, इट इज अ ग्रुप, यूनिवर्सिटी विट्स इज अ ग्रुप ऑफ प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ द पर्टिकुलर एज। ठीक है, तो उसमें कुछ जो ग्रुप है उसमें खास करके इट इज अ ग्रुप दोज राइटर्स हु हैव स्टडीड, हु हैव गॉट देयर एजुकेशन इन ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जानते हैं आप लोग, तो यहाँ पर जो है उन राइटर्स के बारे में हम बात करते हैं जिनका एजुकेशन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से हुआ है। तो यहाँ पर थॉमस लॉज की हम अगर बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट थॉमस लॉज, तो ये जो है ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, मर्चेंट टेलर्स स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज। ही रोट डिफेंस ऑफ प्लेस। देखिए, ही रोट, है ना, ही रोट डिफेंस ऑफ प्लेस, ठीक है, इन रिप्लाई टू स्टीफन ग्रोसन्स स्कूल ऑफ एब्यूज। देखिए यहां पर क्या है, इन्होंने जो है ये स्टीफन ग्रोसन ने स्कूल ऑफ एब्यूज लिखा था, तो उसके रिप्लाई में उन्होंने डिफेंस ऑफ प्लेस लिखा है, थॉमस लॉज ने, याद रखना है। लॉज इज यंग जुएनल ऑफ ग्रीन्स ग्रॉथ्स वर्थ ऑफ विट। ये देखिए ग्रीन्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन्स है, ये ग्रीन जो है, रॉबर्ट ग्रीन, उनका एक वर्क है ग्रॉथ्स वर्थ ऑफ विट। ठीक है, तो उसमें भी इनका नाम जुड़ता है, लॉज को एज ए यंग जुवेनाइल प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, देन हम देखते हैं मार्गेराइट ऑफ अमेरिका, ये भी इनका बहुत फेमस वर्क है स्टूडेंट। ठीक है, मार्गेराइट ऑफ अमेरिका, ये थॉमस लॉज के द्वारा लिखा गया है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोमांस ऑफ लॉज इन विच कंबाइंस सेनेकन मोटिव्स। ये देखिए किसके किसके, सेनेकन मोटिव्स एंड आर्केडियन रोमांस, है ना, इन एन इम्प्रोबेबल लव स्टोरी, की लव स्टोरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मार्गेराइट ऑफ अमेरिका, ये कुछ वर्क है। देखिए ये बहुत ज्यादा इनके बारे में आप ये मान के चलिए, इनका ब्रीफ नॉलेज भी आपके लिए काफी है, ये आप जान सकते हैं। और लॉज आल्सो रोड पैम्पलेट, ये पैम्पलेट मतलब एक छोटी बुकलेट टाइप से आप कह सकते हैं, इन रिप्लाई टू स्टीफन ग्रीन बाल्ट। स्टीफन ग्रीन बाल्ट के रिप्लाई में भी इन्होंने पैम्पलेट लिखा है। देखिए, है ना, ये याद रखना है आपको, थॉमस लॉज ने। ही मेड वॉयजेस टू कैनरी आइलैंड, कैनरी आइलैंड के लिए उन्होंने यात्राएं करी हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। देन इनके कुछ हिज ड्रामेटिक वर्क्स, खास करके इन्होंने कुछ प्लेज लिखे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ये आपको मोस्टली यू टू रिमेंबर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, ये बहुत फेमस वर्क है इनका, थॉमस लॉज का, लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट, इट वाज रिटन इन कोलैबोरेशन विद रॉबर्ट ग्रीन, ये ध्यान रखना है, रॉबर्ट ग्रीन के साथ मिलकर लिखा है लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। नेक्स्ट है द वुंड्स ऑफ सिविल वार, है ना, वुंड्स मतलब घाव, द वुंड्स ऑफ सिविल वार, सिविल वार के जो घाव है उसके ऊपर इन्होंने प्ले लिखा है। और उसके बाद में इन्होंने कुछ प्रोज रोमांस एंड पोएटिक वर्क लिखे हैं। प्रोज रोमांस में हम बात करें खास करके, तो यहाँ पर रोजालिंडे आर यूफियस गोल्डन लिगेसी, यूफियस, ये देखिए यहाँ पर, यह जब अंत में एस लगा हो स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये एस नहीं लगाते हैं ना, ये ऑलरेडी इसी के साथ में लिखते हैं, है ना, रोजालिंडे आर यूफियस गोल्डन लिगेसी, तो ये भी एक वर्क है। दिस इज द सोर्स ऑफ, यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है स्टूडेंट, ये जो वर्क लिखा है इसका सोर्स क्या है ना, इन्होंने जो सोर्स लिखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका सोर्स क्या है, रोजालिंडे आर यूफियस गोल्डन लिगेसी। एक्चुअली दिस इज द सोर्स ऑफ, ये सॉरी, ये किसका सोर्स है, तो शेक्सपियर ने एक वर्क लिखा है, हम देखेंगे, है ना, इनका प्ले है एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। तो ये रोजालिंडे आर यूफियस गोल्डन लिगेसी, इससे प्रेरित होकर के शेक्सपियर ने क्या है, एज यू लाइक इट लिखा है। स्टूडेंट, हम शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे,
मैंने आपसे कहा है कि आप लोग पी प्रेजेंट मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप पी लिखें, राइट पी, so that I can come to know that who has joined the class today. पता चल जाएगा कौन ज्वाइन किया हुआ है ना, यहाँ पर नाम नहीं आ पा रहे हैं, आप लोग बताएं जल्दी। यस, चलिए ठीक है, पूनम, प्रियंका, and only Poonam and Priyanka. What about others? There, Mamta. Yes. Good evening. Okay. Thank you. See, आगे बढ़ते हैं हम। तो शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट लिखा है, उसका सोर्स याद रखना, रोजालिंड आर्यूफियस गोल्डन लिखे से, रिटन बाय थॉमस लॉज। एन अलार्म अगेंस्ट, है ना, यू कैन से यूशोर्स, ठीक है, यूशोर्स, एन अलार्म अगेंस्ट यूशोर्स, ये जो है इस ये भी एक वर्क है थॉमस लॉज का। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखना है थॉमस लॉज के बारे में। अगला जो हमारा जो कैरेक्टर है, जो राइटर है जिसकी हम चर्चा करेंगे, थॉमस नेश, है ना। ही वॉज बोर्न इन 1567 एंड डाइड इन 1601, ठीक है। थॉमस नेश के बारे में हम बात करें, सो ही वॉज अ पैम्फलेटियर। पैम्फलेटियर मतलब एक छोटी छोटी बुकलेट टाइप से लिखते थे, पोएट, ड्रामाटिस्ट एंड ऑथर ऑफ द, ये देखिए ऑथर रहे हैं किसके, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, वेरी फेमस वर्क थॉमस नेश के द्वारा साथी। आपको बता दें बहुत फेमस वर्क हैं, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, आर द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, आर द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, द फर्स्ट, देखिए इसका पूरा नाम क्या है, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर आर द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, द फर्स्ट पिकारेस्क्यू नॉवेल इन इंग्लिश। देखिए फर्स्ट पिकारेस्क्यू नॉवेल। अब सवाल उठता है व्हाट इज पिकारेस्क्यू नॉवेल। पिकारेस्क्यू नॉवेल मींस इट इज अ ट्रेवल बेस्ड नॉवेल। एक कोई कैरेक्टर है जो अलग अलग जगह पे घूम रहा है, साहसिक कारनामे कर रहा है, डरावना है, बड़े, है ना, मतलब एक रिस्क लेता है, आप कह सकते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग एडवेंचर्स के माध्यम से, है ना, अलग अलग प्लेस पे कोई कैरेक्टर जाता है और वहां से पूरी थीम को इजाद करते हैं, ठीक है। तो पिकारेस्क्यू नॉवेल है जहां से कोई, जैसे, है ना, इंग्लैंड से फ्रांस, फ्रांस से नीदरलैंड, इस तरीके से मूव करते हैं कैरेक्टर्स। तो ये पहला थॉमस नेश का, ये जो यहाँ पर जो जैक विल्टन है, इसकी पूरी वंडरिंग को इसमें दिखाया गया है और इसलिए ये पिकारेस्क्यू नॉवेल है। When we talk about Thomas Nash, student, he was educated at University of Cambridge. As I told you, student, these writers, the university wits. Again, let me remind you, simple question can be framed. Who is not among university wits? एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, कौन यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं है। सो स्टूडेंट, थॉमस नेश जो है यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल है और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ठीक है। He was educated in Cambridge University. In 1589, he wrote The Anatomy of Absurdity, The Anatomy of Absurdity, and the preface to Green's Menaphone. ये देखिए, रॉबर्ट ग्रीन्स मेनाफोन। तो ये वर्क भी थॉमस नेश का है। पियर्स पेनिलेस, His Supplication to the Devil, ये भी इनका वर्क है। A satire focus on the seven deadly sins, ये एक तरीके से सटायर है, focused on the seven deadly sins, है ना, was Nash's most distinctive work. Student, remember, Piers Penless, his supplication to the devil. Student, ये seven deadly sins, there is a theory, there is a concept in Christianity, जो इंसान के लिए 7 महापाप है, उनकी चर्चा की गई है, उसके ऊपर ये सटायर है। तो थॉमस नेश के वर्क हैं। समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, देखिए समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट इज हिज पिकारेस्क्यू नॉवेल, ये भी पिकारेस्क्यू नॉवेल है, रिटन बाय थॉमस नेश, ठीक है, रिमेंबर। एंड नेक्स्ट है डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज। डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज इज सपोज्ड टू बी अ कोलैबोरेटिव वर्क विद क्रिस्टोफर मार्लो। ऐसा माना जाता है कि ये जो डिडोज द क्वीन ऑफ कार्थेज, ये जो है क्रिस्टोफर मार्लो के साथ मिलके लिखा है थॉमस नेश। गॉट इट स्टूडेंट? माय वॉइस इज कमिंग और नॉट? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन? यस और नो? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन स्टूडेंट? यस और नो?
Fine, okay. Now let us discuss the very famous work written by Thomas Nash, that is The Unfortunate Traveler or The Life of Jack Wilton. Remember, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट इन इंग्लिश लिटरेचर. वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इन इंग्लिश लिटरेचर में थोड़ा सा डराता भी हूं, लेकिन कॉन्फिडेंट बढ़ता उससे. Student, there are so many factors, so many writers, so many quotations, so many you can say themes, characters are there. Student, you have to revise again and again. बार बार कह रहा हूं, रिवीजन जरूर करें. इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग, इट मींस यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, यू आर नॉट डूइंग स्टडी. अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, इट मींस यू आर लेकिंग बिहाइंड अदर्स. आप दूसरों से पीछे हो रहे हैं. रिवीजन ही असली पढ़ाई है. रिमेंबर माय कोटेशन, रिमेंबर दिस. रिवीजन ही असली पढ़ाई है. रिवीजन इज द रियल स्टडी. सो गो फॉर रिवीजन अगेन एंड अगेन. आई रिमाइंड यू स्टूडेंट, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा. एंड वन थिंग, देखिए आप कितनी प्यारी फैसिलिटी है. You are getting one of the best facility on this platform. Student, you get recorded classes. You can go through the previous video. As far as offline classes are concerned, you may not find such kind of such a facility. But here you get such facility. You can go through the recorded classes, previous classes video. You can watch and you can revise again and again. Is it clear? I hope you understand the importance of this online classes. And you are sitting at home, you do not need to spend too much time. You do not need to go here and there. At a moment, at a time, you can connect with us and you can prepare, you can study with us. Okay. Okay, yes, thank you, Mamta, for this appreciation. Okay, thank you. Really, I'm telling you and revising, and I'm encouraging you to revise more and more. Okay. So now let us discuss The Unfortunate Traveler or The Life of Jack Wilton. Briefly, student, I'm telling you, see, it was firstly published in 1594. It is a picaresque novel. Picaresque novel, once again, let me remind you, student, ये एक तरीके से एडवेंचरस हैं और the character moves here and there. ठीक है. So basically it was written during the reign of Henry VIII. है ना. आप देखिए किसके दौर में लिखा गया है, हेनरी 8 ऑफ इंग्लैंड. रिमेंबर, है ना, ये भी पूछा जा सकता है किसके समय लिखा गया है. Here is one of the most important character in this picaresque novel. देखिए क्या है, The Unfortunate Traveler. तो here is Jack Wilton, है ना. यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है कौन है, जैक विल्टन है. इज अ पेज सर्विंग इन द आर्मी ऑफ किंग हेनरी 8. किंग हेनरी 8 में ये पेज एक पोस्ट होती थी, वहां पर पेज सर्विंग का काम करते थे ऑफ इंग्लैंड. व्हेन हीज एडवेंचरस बिगेन, व्हेन हीज एडवेंचर्स बिगेन. अब देखिए एडवेंचर बिगेन का मतलब निश्चित रूप से जब आर्मी कहीं ना कहीं जा रही है तो उसके साथ में वो भी वंडर कर रहे हैं. एडवेंचर्स यानी आप कह सकते हैं कि उनकी यात्रा शुरू होती है, साहसिक यात्रा. Jake tries off, देखिए, his subservience to the captain and persuades the officer. देखिए, tries off his subservience to the captain and persuades the officer that the best means of getting ahead in the army is to turn spy and seek valuable information to the king. Student, थॉमस ने ये जैक विल्टन जो कैरेक्टर है, ये एक ऐसा कैरेक्टर है, ये जैक हमेशा प्रयास करता है कि कैप्टन और जो ऑफिसर है उनके साथ रहते हुए, यानी आर्मी उस पहुंचे उसके पहले पहुंच करके ये मतलब जो महत्वपूर्ण बहुमूल्य जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है वो किंग तक पहुंचाए. उससे क्या होगा कि जो किंग है वो पहले अलर्ट हो सकते हैं, तो किंग को इंफॉर्मेशन पहुंचाने में ये जैक बहुत मदद करता है. अब यहां पर इनके एक और प्रश्न बन सकता है स्टूडेंट, हेनरी हावर्ड, ये देखिए अर्ल ऑफ सरे का मूल नाम क्या था, रिमेंबर आई टॉट यू, हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे. ये भी इनके साथ में फंक्शंस एज अ सस्टेन्ड ट्रेवलर पार्टनर ऑफ जैक विल्टन. प्रश्न पूछा जा सकता है, हेनरी हावर्ड का पूरा नाम, अर्ल ऑफ सरे का पूरा नाम क्या है, या हेनरी हावर्ड किसे कहते हैं, ये पार्टनर है इस यात्रा में, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर की इस यात्रा में जेक के साथ में पार्टनर है, जेक विल्टन के साथ में.
एंड बॉट जर्नीज टू इटली, कहाँ जा रहे हैं वो, इटली के लिए, टू फुलफिल अर्ल्स प्लेज, इन्होंने एक शपथ ली है, एक मतलब मन में धारण किया है क्या, टू डिफेंड द ऑनर ऑफ हिज बिलव्ड गेराल्ड लाइन इन अ टूर्नामेंट। देखिए गेराल्ड लाइन ये अर्ल ऑफ सरे की बिलव्ड है, प्रेमिका है, और इन्होंने टूर्नामेंट में भाग लेने का निर्णय लिया है, और चूंकि ये टूर्नामेंट में कहीं हार न जाए, इनका सम्मान को ठेस न पहुंचे, तो इनके सम्मान को बचाने के लिए टू डिफेंड द ऑनर ऑफ हिज बिलव्ड गेराल्ड लाइन, है ना। तो अर्ल ऑफ सरे की जो प्रेमिका है, उनकी जो प्रेमिका है, उनके सम्मान को बचाने के लिए, उनके डिफेंड करने के लिए ये कहां पर आते हैं, इटली जाते हैं। बहुत बड़ा काम नहीं है, बस यही इनकी ट्रेवलिंग है। एट द एंड ऑफ द प्ले, अंत में क्या होता है यहाँ पर, है ना, जैक एंड हिज न्यूली वेड। अब यहाँ पर देखिए इसी बीच में इनको एक जैक डायमंड करके एक महिला से भी इनकी मुलाकात होती है, जिनके साथ में इनकी शादी हो जाती है। फ्ली आउट ऑफ द सोडोम ऑफ इटली बैक टुवर्ड द इंग्लिश इनकैम्पमेंट इन फ्रांस वेयर द स्टोरी फर्स्ट बिगेन। देखिए मैंने कहा कि वो आर्मी से आगे आगे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो यहां पर जो है वापस वो वहीं पर आते हैं जहां से इन्होंने यात्रा शुरू करी थी। कहां से यात्रा शुरू करी थी, फ्रांस से, वेयर द स्टोरी फर्स्ट बिगेन, जहां से स्टोरी शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट कैरेक्टर जो राइटर है, थॉमस कीट, है ना, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखिए आप, यस यस यस, थॉमस कीट 1558 में इनका जन्म होता है, 1594 में इनकी मृत्यु है। ही वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, द ऑथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी, बहुत फेमस ट्रेजेडी है थॉमस कीट की, हिरोनिमो इज मेड अगेन। स्टूडेंट मैंने इसलिए कहा है कि देयर आर सो मेनी समरीज, स्टोरीज, कैरेक्टर्स, कितना याद रखोगे, इसलिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है। ओके, द स्पेनिश ट्रेजेडी हेरोनिमो इज मेड अगेन, है ना, ये जो वर्क है ये लिखा है थॉमस कीट ने। स्टूडेंट, he was enrolled in merchant taylor school, his fellow students were Edmund Spencer and Thomas Lodge। एडमंड स्पेंसर एंड थॉमस लॉज क्या इनके फेलो स्टूडेंट्स रहे हैं, है ना, किनके, थॉमस किट के। लेकिन थॉमस किट के बारे में अभी भी ये भ्रम, अभी भी ये प्रूफ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि ऐसा माना जाता है कि देयर इज नो एविडेंस दैट किड अटेंडेड एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। प्रश्न पूछा जा सकता है कि थॉमस किड ने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से, लेकिन स्टूडेंट देयर इज नो एविडेंस, है ना, अंटिल देयर इज नो एविडेंस दैट किड अटेंडेड एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। लेकिन बट इट इज यू कैन से it is the style, writing style of the Thomas Kid, it is writing style of the Thomas Kid that compare with the prominent writers of the particular age। थॉमस किड उसी दौर के हैं, और उनका लिखने का स्टाइल भी उन यूनिवर्सिटीज के प्रोमिनेंट राइटर्स की तरह है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं वहां पढ़ाई की होगी, या उनको जो है यूनिवर्सिटी विट्स में ग्रुप में रखा जाता है। गॉट इट। थॉमस हाईवुड ने इनको फेमस किड के नाम से संबोधित किया था। अब यहाँ पर एक और पूछा जा सकता है स्टूडेंट की फुल टाइटल क्या है द स्पेनिश ट्रेजेडी का, ध्यान दीजिए क्या है, स्पेनिश ट्रेजेडीज कंटेनिंग द लेमेंटेबल एंड ऑफ डॉन हेराशियो एंड बेल इम्पेरिया विद द पिटीफुल डेथ ऑफ ओल्ड हेरोनिमो। ये इसका फुल टाइटल है, पढ़ लेना, सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। इट इज अ रिवेंज ट्रेजेडी, याद रखना, रिवेंज ट्रेजेडी यानी कि ये जो है क्या है, बदला लेने वाली एक ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी, ठीक है। हिज अदर वर्क इज रॉबर्ट गार्नियर्स कार्नेलिया, है ना, ये देखिए रॉबर्ट गार्नियर्स कार्नेलिया, ये भी एक वर्क है, 1594 में पब्लिश हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। थॉमस किड के बारे में एक और चीज हम देखिए, ही सीटेड अ ब्रीफ कोटेशन फ्रॉम, देखिए ही साइटेड अ ब्रीफ कोटेशन फ्रॉम द स्पेनिश ट्रेजेडी इन, देखिए थॉमस हाईवुड्स अपोलॉजी फॉर एक्टर्स, थॉमस हाईवुड्स की एक वर्क है अपोलॉजी फॉर एक्टर्स, वहां से कुछ कोटेशन इन्होंने यहाँ पर शामिल किए हैं। फ्रांसिस मेयर्स प्लेस्ड हिम अमंग आवर बेस्ट फॉर ट्रेजेडी, आवर बेस्ट फॉर ट्रेजेडी
फ्रांसिस मेयर्स ने इनको कहा है कि अवर बेस्ट फॉर ट्रेजेडी। ठीक है, द स्पेनिश ट्रेजेडी वाज आर्ग्यूएबली द मोस्ट पॉपुलर प्ले ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर, है ना। ये द स्पेनिश ट्रेजेडी को जो है एज ऑफ शेक्सपियर के दौर में बहुत ज्यादा पॉपुलर प्ले माना जाता है, इसको ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर प्ले का दर्जा दिया जाता है द स्पेनिश ट्रेजेडी को। He is also presumed author of a pamphlet in the prose entitled The Murder of John Bereven. The Murder of John Bereven जो एक प्रोज वर्क लिखा गया है, इसके राइटर भी थॉमस कीड को माना जाता है। द मर्डर ऑफ जॉन बेरेवन 1592 में लिखा गया है, रिमेंबर इट। एंड नाउ नेक्स्ट अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर इज एडमंड स्पेंसर, है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं एडमंड स्पेंसर की। तो he was born in 1552 and died in 1599. Spencer was born in East Smithfield, London in 1552. यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, पूछा गया प्रश्न है स्टूडेंट, क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड, पोएट्स पोएट कहा गया इनको, किसने कहा? चार्ल्स लेम ने। चार्ल्स लेम कॉल्ड हिम पोएट्स पोएट, कवियों के कवि, पोएट्स पोएट। चार्ल्स लेम कॉल्ड हिम पोएट्स पोएट, कवियों के कवि। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट किसे कहा गया है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ही वाज एजुकेटेड, बीए एमए जो है इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन प्राप्त किया है। इन 1579 ही मैरिड मैचेबियास चाइल्ड, देखिए है ना, मैचेबियास चाइल्ड से इनकी मैरिज हुई है। और इन 1594 आफ्टर फर्स्ट वाइफ, मतलब ये इनकी डेथ हो जाती है। और बाद में क्या, स्पेंसर जो है एडमंड स्पेंसर मैरिड एलिजाबेथ बॉयल, देखिए एलिजाबेथ बॉयल। यहाँ पर आप ध्यान रखना स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कैरेक्टर बार बार आएगा, है ना। एलिजाबेथ बॉयल ऑन 11 जून 1594 टू हुम ही एड्रेस्ड द एमोरेटी सोनेट्स। स्टूडेंट एमोरेटी सोनेट्स बहुत फेमस है, इस वर्क को जो है डेडिकेट किया है उन्होंने अपनी सेकंड वाइफ एलिजाबेथ बॉयल को, एडमंड स्पेंसर ने। ठीक है, बात करते हैं फ्रॉम 1580 स्पेंसर लिव्ड इन आयरलैंड, बाद में आयरलैंड चले गए ये। रिकेट रिमार्क्ड स्पेंसर ए चाइल्ड ऑफ रेनेसांस रिफॉर्मेशन, है ना, इनको बालक कहा है स्टूडेंट। रिकेट ने चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, रेनेसा और रिफॉर्मेशन का इनको बालक कहा है, किसने? रिकेट ने। और द इमेज ऑफ देयर मैरिज सेलिब्रेशन इज डिपिक्टेड इन, ये देखिए इमेज ऑफ देयर मैरिज सेलिब्रेशन, जब इस शादी होती है, इफिथेलमेनियम, इनका एक वर्क है स्टूडेंट, इफिथेलेमियन सॉरी, इस वर्क में जो उनकी शादी संबंधित इमेज को प्रस्तुत किया जाता है। एक और इनका फेमस वर्क है स्टूडेंट, फेरी क्वीन, रिमेंबर फेरी क्वीन। ही ऑब्टेन्ड अ लाइफ टाइम पेंशन फॉर फेरी क्वीन, इनका एक वर्क एपिक वर्क आप कह सकते हैं। इस वर्क के लिए इनको क्या है, लाइफ टाइम पेंशन मिली है 50 पाउंड a year फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ, है ना। डिक्लेयर हुआ था 50 पाउंड a year फ्रॉम क्वीन, लेकिन कुड नॉट गेट बिकॉज आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ मदर हबर्ड्स टेल, बाद में मदर हबर्ड्स टेल प्रस्तुत की, तो उसमें क्या हुआ कि द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द क्वीन वाज एंटागोनिस्ट, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये क्वीन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द क्वीन वाज एंटागोनिस्ट, क्योंकि ये जो मदर हबर्ड्स टेल है, इस टेल के विरोध में थे, क्वीन के जो सेक्रेटरी है वो इसके विरोध में थे, इसलिए इनको जो है ये पेंशन नहीं मिली थी। Edmund Spencer, when we talk about Edmund Spencer, so in 1596 he wrote a prose pamphlet, A View of the Present State of Ireland। यहाँ पर देखिए A View of the Present State of Ireland इन्होंने लिखा था in the dialogue form, in the dialogue form में लिखा था। और the pamphlet argued that Ireland would never be totally pacified, मतलब है ना peaceful, by the English। द इंग्लिश मैंने आपसे कहा है कि किसी लैंग्वेज के पहले अगर द लग रहा है तो इसका मतलब होता है पीपल ऑफ द इंग्लैंड या द इंग्लिश पीपल। ठीक है, रिमेंबर ये ग्रामर पूछी जा सकती है। द पैम्पलेट आर्ग्यूड दैट आयरलैंड वुड नेवर बी टोटली पैसिफाइड। इस पैम्पलेट में कहते हैं कि जो आयरलैंड है वो पूरी तरीके से तब तक शांत नहीं होगा, पीस नहीं आएगी वहां पर, अनटिल इट्स इंडिजिनस लैंग्वेज, यानी जो इसकी लोकल लैंग्वेज है, इंडिजिनस लैंग्वेज एंड कस्टम्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड इफ नेसेसरी बाय वायलेंस। यानी वहां जो इंडिजिनस है या जो मूल लोग हैं वहां के, उनकी लैंग्वेज और कस्टम्स को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाए,
तब जाके यहाँ पर शांति आ सकती है। और स्टूडेंट इन्होंने यही आप देखेंगे इंग्लिश यही सोच इन्होंने अलग अलग देशों में राज करने के दौरान इन्होंने रखी। आप देखेंगे बहुत सारे देशों में इन्होंने शासन किया, और जो पर्टिकुलर जैसे भारत में भी जो इंडिजिनल लैंग्वेज है, जो लोकल नेटिव लैंग्वेज होती है, उसको डिस्ट्रॉय किया कहीं ना कहीं। आज देखिए आप इंग्लिश का बोलबाला है, और जो हमारी हिंदी है या और भी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी के साथ में पिछड़ जाती है। तो यही इनकी सोच थी, मतलब इस तरीके से ये जो इन्होंने लिखा है आइलैंड के बारे में, और इनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं इनके जो रूलर रहे हैं उनके ऊपर भी प्रभाव डालती है। अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन ने लिखा, स्पेंसर डाइड एट द एज ऑफ 46 फॉर द वांट ऑफ ब्रेड। ये देखिए, है ना, मतलब फॉर द वांट ऑफ ब्रेड, आप देखिए, है ना, मतलब इतना सब करने के बावजूद भी अंत में जो है इनकी भूखमरी के कारण इनकी डेथ होती है। मेजर वर्क्स में इनके बात करें तो फेरी क्वीन है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है फेरी क्वीन। 1590 में जब इसका पब्लिश हुई थी तब 3 बुक्स थे, और 1596 में 6 बुक के साथ में ये पब्लिश हुई है। देन इट इज द इपिक पोएम स्टूडेंट, महाकाव्य है। क्या है ये? महाकाव्य है। इट इज रिटन इन स्पेंसेरियन स्टेंजा। स्पेंसेरियन स्टेंजा में क्या होता है? ए बी बी सी। मैं आपको बता रहा हूं, है ना, क्या लिखा है उन्होंने? ए बी फिर बी सी और सी। देखिए, तो यहां पर क्या है, ये फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन का राइमिंग मिलेगी, सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन की राइमिंग मिलेगी, फोर्थ और फिफ्थ की राइमिंग मिलेगी। फिर आप यहां से यहां पर देखिए नया आएगा, जो नेक्स्ट है इसकी राइमिंग मिलेगी, है ना। फिर यहां से यहां इस तरीके से। तो ये जो है स्पेंसेरियन स्टेंजा कहलाता है। अलग अलग स्टेंजा है, विलियम शेक्सपियरियन स्टेंजा, इस तरीके से। तो ये सोनेट है, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर ऑल द बुक्स आर बेस्ड ऑन किंग ऑथर, ये ध्यान रखना, किसके सारी ये जो बुक्स है किसके ऊपर बेस्ड है? किंग ऑथर के ऊपर बेस्ड है। द फर्स्ट 3 बुक्स वर पब्लिश्ड इन 1590 एंड द सेकंड सेट ऑफ 3 बुक्स वर पब्लिश्ड इन 1596, ये ध्यान रखना है। स्पेंसर स्टेट्स दैट, वो कहते हैं, द एम ऑफ बिहाइंड द फेरी क्वीन, क्या एम है इसका पीछे, क्या एम है? He was to fashion a gentleman or noble person, to fashion a gentleman or noble person in virtuous and gentle discipline, है ना, ठीक है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को, एक गुणी व्यक्ति को क्या है? एस्टेब्लिश करना है, अनुशासित के रूप में उसको स्थापित करना है। एक्चुअली स्पेंसर हैड प्लान्ड टू राइट 24 बुक्स बट इट रिमेन्ड अनफिनिश्ड। जैसे कैंटरबरी टेल्स में भी स्टूडेंट आपने देखा होगा 120, है ना, टेल्स लिखने का संकल्प लिया था जॉफरी चौसर ने, लेकिन वो 24 टेल्स ही अपने आप कह सकते हैं कि फाइनली जो है 24 टेल्स ही आप देखेंगे। लेकिन इसी प्रकार से यहाँ पर 24 बुक्स लिखने का इन्होंने संकल्प लिया था, लेकिन अनफिनिश्ड रह गई। एडमंड स्पेंसर का अगला जो वर्क है, द शेफर्ड्स कैलेंडर। द शेफर्ड्स कैलेंडर, इट वाज स्पेंसर्स फर्स्ट मेजर पोएटिक वर्क। स्टूडेंट रिमेंबर द शेफर्ड्स कैलेंडर शेफर्ड्स यानी चरवाहे का जो कैलेंडर है आप देख सकते हैं, मेजर पोएटिक वर्क पब्लिश्ड इन 1579 बाय हग सिंगलटन, ठीक है, या यहाँ पर और थोड़ा ह्यू सिंगलटन आप कह सकते हैं, ह्यू सिंगलटन, इनके द्वारा ये वर्क पब्लिश किया गया है। पोएटिक वर्क, ये भी याद रखना। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बार बार सिंपल फैक्ट क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जा सकता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। इट इज एन एलिगोरिकल पोएम। एलिगोरिकल का मतलब आप कह सकते हैं कि तुलना करते हैं कहीं से हम लोग, है ना, या एक सिंबॉलिक रूप में बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, ये ना डायलॉग है यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क एमिरोटी सोनेट्स, ये देखिए 1595 में। तो ये एमिरोटी सोनेट्स यानी कुछ बहुत सारी हैं। एडमंड, इट वाज पब्लिश्ड बाय विलियम पोन्सबाई इन वॉल्यूम। देखिए किसके द्वारा पब्लिश की गई है एमोरेटी सोनेट्स? विलियम पोन्सबाई के द्वारा, इन अ वॉल्यूम इंटाइटल एमोरेटी एंड एपिथेलमेनियम। ये देखिए एपिथेलेमियन, एमोरेटी एंड एपिथेलेमियन, ये बिल्कुल इस टाइटल के रूप में प्रस्तुत की गई है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए एमोरेटी इज एन इटालियन वर्ड, ध्यान रखना, ये क्या है? ये इटालियन वर्ड है, और इसका मतलब होता है लिटिल लव गिफ्ट। लिटिल लव गिफ्ट क्या मतलब इसका? लिटिल लव गिफ्ट या लिटिल लव
पोएम्स, लिटिल लव पोएम, छोटी छोटी प्रेम से संबंधित कविताएं। ठीक है, एमोरेटी इज अ इटालियन वर्ड विच मींस लिटिल लव गिफ्ट और लिटिल लव पोएम्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगेन आई रिमाइंड यू स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ, देखिए ये जो एमोरेटी सोनेट पूछा जा सकता है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 89 sonnets. It is a sequence of 89 sonnets dedicated to his second wife Elizabeth Boyle. ये देखिए एलिजाबेथ बॉयल को ये समर्पित है, उनकी जो सेकंड वाइफ है उनको। एपिथैलेमियम यहाँ पर आप देखिए 1595 में प्रस्तुत होती है। It was written by Spencer on his wedding with Elizabeth Boyle in 1594. ये जो है एपिथैलेमियम, ये जो पोएम है क्या है, स्पेंसर ऑन हिज वेडिंग, अपनी वेडिंग के ऊपर, अपनी शादी के ऊपर, विद एलिजाबेथ बॉयल जो सेकंड वाइफ है उनके साथ में, इन 1594, बट पब्लिश्ड इन 1595। इट इज आल्सो कॉल्ड अ न्यूप्शियल सॉन्ग। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अपनी वेडिंग के ऊपर लिखा है इन्होंने, सेकंड जो मैरिज की थी उसके ऊपर। इट इज ऑड रिटन टू हिज ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल, तो एक तरीके से ऑड है, इट इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। प्रोथेलेमियन, प्रोथेलेमियन 1596 में, इट वाज पब्लिश्ड इन 1596। एस्ट्रोफल 1595 में, और कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन, कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन 1595 में। इट इज अ पेस्टोरल पोएम। पेस्टोरल पोएम्स मींस इट इज बेस्ड ऑन रूरल एरिया, आपके रीजनल एरिया है ना, रीजनल एरिया पेस्टोरल। ठीक है, नेचुरल आप कह सकते हैं, है ना, बाय स्पेंसर, पब्लिश्ड इन 1595। Got it? Epithalamian, it is okay, ये रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, सॉरी। चलिए, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट, अब ये कंप्लीट होते हैं हमारे जो यूनिवर्सिटी वीट्स और कुछ अदर राइटर्स। अब हम जो है पूरे इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है, विलियम शेक्सपियर। स्टूडेंट, विदाउट विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर इज, यू कैन से, वी कैन नॉट इमेजिन। विलियम शेक्सपियर के बिना इंग्लिश लिटरेचर की कल्पना नहीं की जा सकती है। दिस राइटर इज वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द पॉपुलर फेमस राइटर, ड्रामाटिस्ट, पोएट, एनी यू कैन से। और इनके द्वारा जो वर्क लिखे गए हैं, प्लेस लिखे गए हैं, दुनिया की जितनी महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, बड़ी भाषाएं हैं, उन सब में ट्रांसलेशन हुआ है। तो विलियम शेक्सपियर को हम, अगला हमारा जो राइटर है वो हम विलियम शेक्सपियर की चर्चा करेंगे स्टूडेंट। सो लेट अस डिस्कस अबाउट विलियम शेक्सपियर। ठीक है स्टूडेंट, सी, और थोड़ा इसमें डिटेल में जाएंगे। बहुत सारे इनके जो वर्क्स हैं उन एग्जाम में आते हैं, लेकिन उनमें भी सिलेक्टेड वर्क्स की हम लोग जो है समरी आई विल डिस्कस विद यू। ठीक है, because we have to as soon as we complete our syllabus we will go through the previous year question also। ठीक है ना, जैसे ही हम लोग जो है सिलेबस कंप्लीट होगा, हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर भी चर्चा करेंगे, एंड देन उसके साथ हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके, यस और नो, वंस अगेन कंफर्म मी, यस, कैसे आप लोग, प्लीज, voice, audio, video, everything is clear, fine? Okay, चलिए आइए बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की स्टूडेंट। तो यहां पर देखिए, विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट, एक्टर, widely regarded as the greater writer in the English language and the world's greatest dramatist। रिमेंबर क्या क्या है वो, इंग्लिश पोएट है, प्ले राइट है यानी ड्रामाटिस्ट है, एक्टर भी रहे हैं, वो खुद ही एक्टिंग भी करते थे स्टूडेंट। ही वाज, यू कैन से, ही वाज एन एक्टर आल्सो, और उनको इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा राइटर कंसीडर किया जाता है। ही वाज ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, दुनिया के। और इसीलिए मैं कहता हूं स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक हटके कुछ बातें बताता हूँ, लिसन टू मी। एज ए इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, सपोज, हाँ यहाँ पर देखिए, आप देखिए, सपोज हियर, आप ये यहाँ पर हैं, आप
आप 1 2 3 4 मान ले, सपोज आप 4 राइटर्स को पढ़ते हैं स्टूडेंट। मैं आपको बताऊं कि आप 4 राइटर्स मान ले ए बी सी, आपने डी, 4 राइटर्स को आपने पढ़ा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर आप है, लेकिन ये आपका यहाँ आपका अकेले का माइंड है ना। लेकिन आप जब ये 4 राइटर्स के बारे में 4 राइटर्स को पढ़ते हैं तो इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी राइटिंग्स को दी है। सो इन क्या हम क्या करते हैं, इनके माइंड को पढ़ते हैं, इनके थॉट्स को पढ़ते हैं स्टूडेंट। और इसीलिए मैं कहता हूं स्टूडेंट को कि आप किसी एक राइटर को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसके माइंड को पढ़ रहे हैं। और वेट वेट ओके। ओके, सॉरी फॉर गेटिंग डिस्टर्बन। चलिए, तो मैंने कहा आप लोगों को कि हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में पूरे वर्ल्ड माइंड को पढ़ते हैं, है ना। तो इंग्लिश लिटरेचर क्या है, मेरे गुरु कहा करते हैं कि लिटरेचर इज लाइफ, लिटरेचर इज लाइफ एंड वी लर्न मेनी मोर थिंग्स फ्रॉम लिटरेचर। तो हम लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करें, ही इज ऑफन कॉल्ड द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ हेवन। देखिए स्टूडेंट, ये पूछा जाता है, हु इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ हेवन, ठीक है, हु इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। तो बार्ड ऑफ एवन जो है, चूंकि इनका स्ट्रेटफोर्ड एवन इनका जो बर्थ प्लेस है, तो बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है इनको, और नेशनल पोएट का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर बात करें, हिज एक्सटेंट वर्क्स इंक्लूडिंग कोलैबोरेशंस कंसिस्ट ऑफ, देखिए पूरा इनका जो वर्क है वो सब जो है आप देखेंगे 39 प्लेस के आसपास इन्होंने लिखे हैं, 154 सोनेट्स इन्होंने लिखी हैं, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखी हैं, एंड अ फ्यू अदर वर्सेस, सम ऑफ सर्टेन ऑथरशिप। ये देखिए कितना लिखा है इन्होंने अपने करियर में, देखो है ना, 39 प्लेस, 154 सोनेट्स, इतने सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं, इतने वर्क इन्होंने लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर, ही वाज बोर्न एंड रेज्ड इन स्ट्रेफोर्ड अपॉन एवन। ये देखिए स्ट्रेफोर्ड अपॉन एवन, है ना, वार्विकशायर। ये देखिए, तो यहां पर इसलिए इनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। समटाइम्स बिटवीन 1585 एंड 1592, है ना, बिटवीन 1585 एंड 1592 ही बिगेन अ सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन, है ना। यहाँ पर ये उन्होंने एक अपना कैरियर जो शुरू किया है, पूछा जा सकता है 1585 और 1592 में इन्होंने अपना कैरियर लंदन में शुरू किया एज एन एक्टर, राइटर
एंड पार्ट ओनर ऑफ अ प्लेइंग कंपनी कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ये देखिए, इन्होंने खुद की अपनी कंपनी भी ओपन की थी। क्योंकि वन थिंग, वंस अगेन लेट मी रिमाइंड स्टूडेंट, उस समय सिनेमा हॉल ये इस तरीके से नहीं हुआ करते थे, है ना। तो जो है इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी कंपनी बनाई है, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। अब यहाँ पर खुद के ऑनर भी रहे ये, है ना, मतलब इसके कंपनी के ऑनर भी रहे हैं। और बाद में क्या हुआ है कि इनको किंग का संरक्षण प्राप्त हुआ, और जो है द किंग्स मैन इनका नाम पड़ गया था। ये जो कंपनी का नाम है लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, है ना, इसका नाम हो गया द किंग्स मैन। ठीक है, ओके स्टूडेंट, वॉइस ऑडियो क्लियर है, यस और नो? Shakespeare produced most of his known works between 1589 और 1613 में इन्होंने अपने वर्क पब्लिश किए हैं। देखिए 1589 और 1613 में। He was born and raised, ये रिपीट हो रहा है ये वाला, सॉरी, until about 1608 हम बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो ही रोट मेनली ट्रेजेडीज। देखिए ज्यादातर इन्होंने प्ले में ट्रेजेडीज लिखी है। ट्रेजेडीज का मतलब होता है दुखांत, है ना, ट्रेजेडियां दुखांत होता है। अमंग देम हम बात करें हेमलेट है, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ऑल कंसिडर्ड टू बी अमंग द फाइनेस्ट वर्क्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये सारे ट्रेजेडीज हैं, और इनको जो है बहुत महत्वपूर्ण वर्क्स इंग्लिश में मतलब इनको कंसिडर किया जाता है। In 1623, two fellow actors and friends of Shakespeare's, देखिए कौन कौन है, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, ये ना, ये इनके फ्रेंड्स हैं। इन्होंने क्या किया, पब्लिश्ड अ मोर डेफिनाइट टेक्स्ट नोन एज द फर्स्ट फोलियो। ये देखिए दो फेलो एक्टर हैं इनके, फ्रेंड्स ऑफ शेक्सपियर, इन्होंने क्या करा, द फर्स्ट फोलियो करके एक टेक्स्ट है, इनको पब्लिश किया। पोस्ट माउथली कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक वर्क दैट इंक्लूडेड ऑल बट टू ऑफ हिज प्लेज। बाद में इनके प्लेज में भी ये देखने को मिलता है। द वॉल्यूम वाज प्रीफेस्ड विद अ पोएम बाय बेन जॉनसन इन विच जॉनसन द वॉल्यूम वाज प्रीफेस्ड मतलब इसका जो प्रारंभिक है या उसका इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं, है ना, ये प्रीफेस्ड विद अ पोएम बाय बेन जॉनसन इन विच जॉनसन precisely held Shakespeare in a now famous quote as not of an age but for all time। देखिए इसमें जो है वो कहते हैं, है ना, इन बेन जॉनसन इनको रिगार्ड करते हैं, क्रिटिक के रूप में इनको बताते हैं कि नॉट ऑफ एन एज, शेक्सपियर जो थे वो कोई पर्टिकुलर एक एज के नहीं हैं, जिस दौर में जन्मे उस दौर के नहीं हैं, बल्कि बट फॉर ऑल टाइम। इनके सारे वर्क्स इतने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, शेक्सपियर was probably educated at the King's New School in Stratford at the age of 18। शेक्सपियर मैरिड 26-year-old एन हैथवे, याद रखना इनकी वाइफ का नाम एन हैथवे, इन 1582। शेक्सपियर मैरिड 26-year-old एन हैथवे इन 1582, रिमेंबर एन हैथवे। He was attacked in print He was attacked in print by the playwright Robert Greene in his Groats Worth of Wit, है ना। ये देखिए he was actually में जो रॉबर्ट ग्रीन है, इन्होंने अपना वर्क जो था ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट में कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया है विलियम शेक्सपियर को लेकर के, है ना। ये इस तरीके से कहा है कि देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो, है ना, ब्यूटीफुल विद आवर फीदर्स दैट विद हिज टाइगर्स हार्ट wrapped in a player's hide, suppose that he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you, and being an absolute Johannes Factotum is in his own conceit the only shack scene in a country। इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कौन, रॉबर्ट ग्रीन। इनका एक और द सेकंड फोलियो इज द, जैसे फर्स्ट फोलियो आता है हम देखते हैं, है ना, वैसे यहाँ पर सेकंड फोलियो आता है। तो सेकंड फोलियो में हम क्या है, is the 1632 edition of the collected plays of Shakespeare। It follows the first folio of 1623, उसी को फॉलो करके लिखा गया है। Much language was updated in the second folio। second folio में
अब देखिए यहाँ पर फोलियो का मतलब देखिए एडिशन ऑफ द कलेक्ट, ये क्या एक एडिशन है, पहला पार्ट सेकंड पार्ट इस तरीके से कह सकते हैं, है ना। ये देखिए एडिशन ऑफ द कलेक्टेड प्लेज ऑफ शेक्सपियर ने कुछ प्लेज लिखे तो उसमें ये इसका कंबाइंड एक तरीके से कंबाइंड एडिशन है। Much language was updated in the second folio and there are almost 1700 changes, है ना, इसमें चेंज करके लिखे गए। फिर आता है फॉल्स फोलियो, ठीक है, फॉल्स फोलियो, है ना। ये देखिए इज द टर्म दैट शेक्सपियर स्कॉलर्स and bibliographers have applied to William Jaggard's printing of 10 Shakespearean and pseudo-Shakespearean plays together in 1619, the first attempt to collect Shakespeare's work in a single volume। स्टूडेंट यहाँ फॉल्स फोलियो में कई बार आपको बता दें कि कुछ वर्क जो जब शेक्सपियर के बारे में बात कहा जाता है कि इन्होंने कोई कॉलेज नहीं किया है, एजुकेशन इनका प्रॉपर नहीं हुआ है, तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हैं, तो ये नाम ही फॉल्स है। तो कई बार क्रिस्टोफर मार्लो को कहा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो ही विलियम शेक्सपियर रहे हैं। तो इस तरीके से इनको लेकर के बहुत सारे रहस्य हैं। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि ये रहे हैं, ये कह रहे एक बड़े राइटर हैं। इनकी मृत्यु जो है 23 अप्रैल 1616 को होती है। टू ऑनर दिस यूनेस्को ने क्या किया है, 23 अप्रैल को, रिमेंबर स्टूडेंट, है ना, 23 अप्रैल को द इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक डिक्लेयर किया है। किसने, यूनेस्को ने। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, टेल मी इफ यू कैन टेल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, कैन यू टेल मी स्टूडेंट, फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। ओके, है ना, ले यू कैन टेल। 23 अप्रैल अभी रिसेंटली द इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक डिक्लेयर किया हुआ है, पूछ सकते हैं आपसे। क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में बहुत सारे राइटर्स ने क्रिटिसिज्म किया है, बहुत सारे ने लिखा है। बेन जॉनसन ने किया है, ही टोल्ड अबाउट शेक्सपियर दैट, क्या कहा इन्होंने बेन जॉनसन ने, he redeemed his vices with his virtues, there was even more in him to be praised than to be pardoned, ठीक है। So he redeemed his vices with his virtues, there was even more in him to be praised than to be pardoned, क्लियर है। तो इस तरीके से वो तारीफ करते हैं कि उन्होंने अपने जो बुरे कर्म है उनसे ज्यादा उनके गुणों ने उनको ढक लिया है ना, उस तारीफ, बहुत सारी तारीफ कर रहे हैं। He was not of an age but for all time, ठीक है। इस तरीके से अभी हमने बताया वाला कोटेशन पूछा जा सकता है, किसने कहा है, he was not of an age but for all time, this quotation is said by Ben Jonson and it was dedicated to William Shakespeare। जॉन मिल्टन क्या कहते हैं, ये देखते हैं। he wrote a sonnet title on Shakespeare, है ना, शेक्सपियर। ये देखिए स्टूडेंट ध्यान रखना, ऑन शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर, दिस इज अ सोनेट टाइटल्ड ऑन शेक्सपियर रिटन बाय जॉन मिल्टन इन 1630। ये स्टार्ट होती है ऑन शेक्सपियर, जो सोनेट जॉन मिल्टन ने लिखी उसमें उन्होंने शेक्सपियर के बारे में लिखा। पहली लाइन स्टार्ट होती है, what needs my Shakespeare for his honored bones, what needs my Shakespeare for his honored bones, ठीक है। ये labor of an age in piled stones are that his hallowed relics should be hid, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस तरीके से तारीफ करते हैं जॉन मिल्टन, ठीक है स्टूडेंट। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में अथाह लिखा हुआ है। कल से हम इनके बड़े जो वर्क है उनकी चर्चा करेंगे। और स्टूडेंट प्लीज डू नॉट दिस क्लास, ठीक है। आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे, विल कंटिन्यू। स्टूडेंट एक इंफॉर्मेशन आपके लिए है, कल 10 बजे, टुमारो 10 o'clock देयर विल बी गूगल मीट एंड यू कैन कनेक्ट विद अस, यू कैन कनेक्ट विद अस विद द होल फैमिली ऑफ फिलर फार्म। पूरे फिलर फॉर्म फैमिली से आप कल कनेक्ट हो सकते हैं। 10 o'clock शार्प, 10 o'clock यू टू कनेक्ट विद अस, ओके स्टूडेंट। कल आपको 10 बजे हमसे जुड़ना है ना। वी विल लीव द मैसेज आल्सो, ओके, एंड यू विल गेट गूगल लिंक एंड देन यू कैन कनेक्ट विद अस, ओके स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच, इट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप, है ना, ये वंस अगेन हियर वेट, है ना। सो आई एम लिविंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच। चलिए,
So student, once again I remind you, join Google Meet at 10 o'clock tomorrow, है ना? Thank you very much. पूरे फिलर फॉर्म से कल जुड़े आप. Thank you.